جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ متی رسول کی انجیل کے بعد اپنی فہرست کے اس کو جو بائبل مقدس کی فہرست ہے اس میں سے اپنی انجیل کو مدرج کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انجیل منورہ اور خدا کا کلام روح القدس کی ہدایت سے لکھا گیا۔ آمین۔ دیکھیں، کوئی بھی جو صحیفہ ہے اس کے روح کے بغیر نہیں لکھا گیا۔ آمین۔ روح القدس کے وسیلہ سے، کیونکہ روح القدس رسولوں سے کلام جو ہے وہ کرتا تھا، اور اس انجیل کو مرکز سے لکھا ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد اور رسول بھی ہے، جو برناباس کا رشتہ دار تھا۔ یہ برناباس کا رشتہ دار تھا، اور یہ پترس رسول کے وسیلہ سے مسیحیت میں آیا تھا۔ آمین۔ اس کو کلام سنانے والا وہ پترس رسول تھا، اور یہ اسی کے وسیلہ سے مسیح ہوا تھا۔ لیکن یہ انجیل جب لکھتا ہے، یہ انجیل جو ہے یہ 50 سے 55 کے دوران اس کو 5 سال اس کو تحریر ہونے کے لیے لگے۔ لیکن یہ انجیل جو تھی اس کے دوران لکھی گئی، لیکن یہ اٹلی میں لکھی گئی۔ اٹلی جو آج کا جو ملک ہے نا، اٹلی، وہاں لکھی گئی۔ لیکن 5 سال رسول جو تھا یہ تابعداری میں رہا روح القدس کی۔ لیکن رسول تو سدا ہی تابعداری میں رہتے ہیں، لیکن میں انجیل کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا، جب یہ انجیل کو لکھ رہا تھا تو یسوع مسیح کی خوشخبری کا بیان پہلے باب میں بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر یسوع مسیح کے بارے میں ایسا ہے، بیان کرتا ہے، اور وہ لکھتا ہے، یسوع مسیح کی تعریف لکھتا ہے، یسوع مسیح کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے، جب یہ ایسا ہے کہ ایسے چوتھے باب کے اندر پہنچتا ہے تو اس کی 35 آیت کو جب لکھتا ہے، آپ کو بتا باپ، بولے باپ، باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باپ 1، باپ 2، باپ 3، باپ 4، کہ باپ کا میں نے بتایا باپ ہے دروازہ، ہاللیلویا، دروازہ۔ باپ اکثر جاتے ہیں بڑے بڑے گیٹوں کے اوپر، بڑے بڑے شہر کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے باپ، کیا بے باپ، بے باپ، باپ نہیں بننا، باپ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ آگے آ جاتی آیت۔ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پتا ہے؟ سیکھا آپ نے آیت کا؟ کوئی بات نہیں، آنکھوں انجل سے چڑھی ہے آیت ہے، کیا آتا ہے؟ ہاں جی، کس نے بتایا تھا پہلے؟ ہاں، ایسے ہے نشانی۔ باپ، جب باپ کھلتا ہے، یعنی ایسے دروازہ کھلتا ہے، اس کے آگے آیت 1 2 3 4 5 6 فلا 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 فلا، یعنی آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو نشانیاں شروع ہو جاتی۔ آپ کو یاد ہے نا، کسی بھی شہر کے اندر جائے تو اس کا بہت بڑا ایک دروازہ ہوتا تھا، پھر اس کے آگے ایسے نشانیاں، انجن دھوتے فین ڈالا، فلاں دکان ہے، فلاں کے آگے پانی والا پلانٹ آ گیا، ایسے نشانیاں ہیں۔ جب باپ کھلتا ہے تو باپ کے آگے جو آیتیں آتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ لیکن یہ ایسا ہے، اپنی انجیل کے اندر بیان کرتا، یہ انجیل خدا نے یسوع مسیح کی ہے، لیکن اس کو لکھنے والا مقدس مرکز رسول ہے۔ انجیل جو ہے وہ معرفت بولی جائے گی، لیکن انجیل یسوع مسیح کی ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی، اسی دن جب شام، تو اس سے پہلے یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا ایمان شاگرد اس کا رائی کے دانے جیسا بھی ہو۔ شاگردوں کو، یہ تمام لوگوں کو، تمام پیٹ کو، تمام لوگوں کو یسوع مسیح یہ بیان کر کے جو تھا، یسوع مسیح کا کلام سننے کو اسٹائل الگ تھا۔ کشتی میں بیٹھ کر بھی کلام سناتے تھے، چلتے چلتے بھی کلام سناتے تھے، اور بیٹھ کر ہیکل کے اندر بھی کلام سناتے تھے، اور چلتے چلتے جو تھا، اور سواری کو اوپر ہوتے تھے تب بھی کلام کو شیئر کرتے تھے۔ تحریر میں، مثالوں میں، کہانیوں میں، باتوں میں، ان کے تمام تر ماحول کے مطابق خدا نے یسوع مسیح کلام کرتے تھے۔ لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے، اسی دن جب شام، لگتا بھی دن کو خاص ہے، دن کوئی، اسی دن چاول کھاتے سی، اسی دن قورمہ کھایا، اسی دن شادی پہ گئے، اسی دن ملے سے لڑائی، اسی دن، یہ دن کو خاص ہے، یہ دن کو یاد عام نہیں ہے، بلکہ دن یہ خاص ہے۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار، ہاللیلویا، آؤ کیا کریں؟ آؤ پار چلیں، آؤ۔ آج جب جانے کے کس نے کہا آؤ گرجے چلی،
आख्या कभी किसी आंदे किस ने चलो तू आख और काका किने तू किने आख्या तू माने नु आख्या और किने आख्या किसे आख्या आओ गिनसे बाइबल के अंदर लिखा आओ। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा उसका मतलब होता है यीशु मसीह ने शागिर्दों से लोगों से कहा आओ मैं तुम्हें एक बड़ा मोर्चा दिखाता हूं। जब तुम वहां पहुंचोगे वहां जब आंधी आएगी ये आगे जाकर हम बताएंगे, लेकिन आगे जाकर सीखेंगे। आओ बात चलेंगे और बात चलने के बाद आप जब उस क्रॉस उस आप ऐसा है मुखालफत को उस ऐसा है रिकावट को जब आप क्रॉस नहीं करेंगे आप मोर्चा नहीं पा सकते, कभी भी आप नहीं पा सकते मोर्चा। आपने क्रॉस नहीं करा एक आवा पार कलाम उठी भी सुना सकता सी यीशु मसीह सुना सकता सी या नहीं, लेकिन एक आवा पार यीशु मसीह का पता था। जब बाइबल के अंदर का वहां कश्तियां और भी थी, कश्तियां अच्छा कश्तियां हो रही थी तो कश्ती यीशु मसीह ने क्यों डूब गई? देखा वो कश्ती बाइबल कहती है, बाइबल लिखा कश्तियां और भी थी, कश्ती अच्छा पानी पाँच यीशु मसीह की कश्ती जा रहे हैं पाँच चलना बान लेकिन बाइबल के अंदर लिखा आप गद्दी पे क्या कर रहे अब सो रहे, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा आओ पार चले। जब आप पार की बात करेंगे, पार का मतलब ये है आज की दौर की मैं बात करूं, पार का मतलब होता है अपनी गुनाह को पार करना है, अपनी बदकारी को पार करना है, अपनी रिकावट को, अपनी परेशानी को, अपनी सुस्तीपन को। कई बार ये सीखे क्या तुम्हारा दिन कई लोग उन्नति को सुनते रहने जब तक चर्च खत्म हो सुनते ही रहते वो सारी उम्र सुनते ही रहते उन्होंने किस्मत भी सुनतियां रहनियां क्योंकि उन्हें नींद बहुत आती। बाइबल में अंदर लिखा है मैंने एक बहन से पूछा वो कहाँ भाई, कहते वो सो रहा है। मैं क्या चल सुनते ही रहे। बाइबल क्या कहती है उनसे कहा आओ पार चले, आओ पार चले। और बाइबल के अंदर लिखा है और जब वो वहां पहुंचे तो लिखा भीड़ और वो भीड़ को छोड़कर उससे जिस साल में था कश्ती पर साथ ले चले, उसके साथ और कश्तियां बोलो और किसी क्या यीशु मसीह की कश्ती कर ली सी नहीं, बाइबल कहती और कश्तियां भी थी। और मैं फिर पढ़ने लगा हूं और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली, लहरें कश्ती पर, पहले क्या है कश्तियां फिर है कश्ती, पहले लिखा कश्तियां थी फिर लिखा लहरें। अच्छा वो कश्तियां किहड़ियां किनारे ते जी, वो भी तो समुद्र दे विच ही सी ना, कदी ते इत्थे कश्ती चलदी देखी है बिच ट्राई करी कश्ती ट्राई कश्ती में सब पानी में चलती, कश्ती में सब लिखा वहां और भी कश्तियां लिखा, इसके साथ ही लिखा लेकिन उस कश्ती में और भी कश्तियां थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर आने लगी। सुनिए तो के साथ, जब वहां लहरें चली यहां तक आई कि कश्ती पानी से भर जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने से जगा कर कहा ऐ उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम हलाक हो जाते हैं? उनसे कहा अब ये बात कहने वाले थे, शिकता ने कुछ बाल्टियां रखी होने में तेरा पानी कटे होना है, लेकिन कश्ती हल्की नहीं हो रही थी, कश्ती साकर नहीं हो रही थी, समुद्र साकर नहीं हो रहा था और तूफान बढ़ता जा रहा था। जैसे वो मूव करते हैं और तूफान लहरों से भर जाता है, लहरें ज्यादा से ज्यादा उठती जा रही हैं और तूफान उनके खिलाफ होता जा रहा है, उनके खिलाफ जब होता जा रहा है उन्होंने आख्या भी होने का लड़ी बनी कौन उस्ताद जी क्यों हालेलुया और एक उस्ताद नु उठाओ हैं। कई बार आप दुआ कर दे रहे जो कम अड़ जाए उदो आप या तो खादमान बुलाने या सी खुदा दी जोड़ी चाकने हालेलुया ये करना चाहिए। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अब तूफान पर पड़ा। अब मैं फिर रिपीट करने लगा कश्तियां और भी लेकिन तूफान इनकी कश्ती में क्यों आया? आज आपकी कश्ती के अंदर तूफान बड़े बड़े तूफान बर्पा होंगे, आप पे रोजगारी के गुनाह के बदकारी के अपनी बड़े बड़े तूफान आपकी लाइफ के अंदर लाएगा। लेकिन आपने यीशु मसीह को जगाना है और जगाने का यीशु मसीह सोता नहीं है, जगाने का मतलब यह है
उसकी हजूरी में रखना है ये सब कुछ। आप उससे मांगना है, आपने उससे कहना है, आपने उससे ये सारी बातें रखनी। अच्छा यीशु मसीह सो रहा तो यीशु ने कोई अच्छा को बूंद यीशु ने भी नहीं पड़ दी। देखा कश्ती पानी से तुसी सुते हो कोई जाने पानी तो छड़ दे मैं ना लाला लाला हो जाती है। हाय हाय हाँ की हो गया कभी थोड़ा जे नींद कर मुझे पानी छट के वेखी केरे उत्ते भला मेरा सुता होया। अच्छा जब मैं सोच रहा सर राती 2 बजे का टाइम सी 2 बजे का रात टाइम सी मेरे बीवी मेरे बच्चे सो गए पर मैं नहीं सोता। मैं उठा मैंने प्रेयर की फिर करने के बाद मैंने सोचना शुरू किया मैं कि यार कश्ती पानी ना भर जाती यीशु सुता होया यीशु मसीह के पैरों नहीं लगे पानी यीशु मसीह के सिर नहीं लगे। लेकिन बात समझिएगा यीशु मसीह जान ही सुनते ऐसी बात मैं सिकंदर देखा क्या इन्हों के अंदर कितनी के ईमान की ऐसा है ताकत है लेवल है। लेकिन बाइबल के अंदर को बथेरे करीब इंज कर रहे थे पानी इंज करो लेकिन कश्ती जो थी वो सक नहीं हो रही थी कश्ती जो थी वो इजी नहीं हो रही थी और उनको ऐसा मुश्किल में। इसका मतलब होता है जब तूफान जिंदगी के अंदर बर्पा होता है खानदानों के अंदर बर्पा होता है कश्ती से बड़ा खानदान है परिवार है आपका घराना है आपकी बीवी है आपका शोहर है आपकी आपकी बेटी है आपका बेटा है आपका परिवार है तूफान से मुराद है बड़े बड़े पुलिस के हथियार। अगर आप उसको यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे आप तूफानों से रहाई पाएंगे आप बीमारियों से रहाई पाएंगे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा जब आकाश सो रहे हैं और जनाब हम मरे जा रहे हैं और यीशु मसीह ने कोई बात नहीं की आप खड़े रहे आप कश्ती के किनारे पे आए तो कश्ती के किनारे को बुलाकर हाथों को उठाया उठाने के बाद कहा पानी तुझे पता नहीं है तूफान तुझे पता नहीं है आंधी तुझे पता नहीं है मैं सो रहा था तूने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। हालेलुया। आप कश्ती के किनारे के बाद हाथों को उठाने तूफान मैं मान रखना जो ये सुना जो हाथ उठाया ना तूफान रखना ओके जनाब मैं वापस आ गया। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक आयत है मैं इसको पढ़ रहा था ज़बूर 104 के अंदर लिखा है ज़बूर 104 उसके साथ में लिखा है तवज्जो के साथ बल्कि उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। ज़बूर 104 उसकी 6 मैं पढ़ रहा था मैंने कहा ये खुद ही कलमा बन के आ गया। हालेलुया। और आगे लिखा है ज़बूर 104 उसकी 6 में लिखा है और तूने उसको समुद्र से छुपाया जैसे लिबास से पानी पहाड़ों से भी बुलंद था पानी से बुलंद था। आगे सुनिएगा वो तेरी झिड़की से भागा। हालेलुया। ऊंची बोलो हालेलुया। वो तेरी झिड़की से भागा कौन पानी समुंदर और आगे लिखा बड़ा बड़ा बहाव लेकर जाने वाला वो तेरी झिड़की से भागा वो तेरी गरज की आवाज से जल्दी जल्दी चला। हालेलुया। यीशु से आख्या गाल सुन मेरी कश्ती च प्याम में ऐज हाथ उठाया उजी तो पानी उससे वक्त अपना सर झुकाया और पानी भी सर झुकाने देने वाले सारे कई बार इतने लोग वो जी बह जाते हैं चर्च वो न क्या है तू गिरजे आने के लिए गिरिया तो मरे गिरना की थी गिर जाना बाइबल के अंदर क्या गिर पूछे जाने से डाले को गिर जा ये किसी के अंदर आने के भी तू नहीं गिरता तो फिर तूने गिरना कहाँ क्या कहती बाइबल क्या कहती बाइबल में लिखा है और खुदा का कलाम सिखाता है तो नूर को पोशाक की तरह पहनता है और आसमान को शैतान की तरह तानता है और वो अपने बाला खाने के शरीर पर पानी निकट खाता है। हालेलुया। तो बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के बारिशों पर सैर करता है। यीशु मसीह कहा तुसी मेरे रथ हो हवा नु आख्या हवा नु आख्या तुसी मेरे रथ हो तो तुसी मैनू ही डुबाना है। उन्हें क्या कहा सॉरी ऐसी थी शागिर्द चेक करना चाहते सा यीशु मसीह का जब तक मैं साथ दूं शागिर्द डूब नहीं सकते। हालेलुया। सो रहता नहीं बजाएंगे और बाइबल लिखा वो हवा के बारिशों पर सैर करता और अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाता है। आमीन। लिखा वो तेरी गरज की आवाज से जल्दी जल्दी करे पानी की बात है तूफान की बात है वो तूफान आज आपकी लाइफ के अंदर से रिमूव हो सकता है एक शर्त पर कि आप कश्ती में यीशु के साथ हो। आमीन। तवार दे तवार नहीं
हर रोज कश्ती से मुराद आपका खानदान है। यीशु मसीह कहे हर रोज मेरे खानदान में आ, हर रोज मेरी कश्ती के अंदर एंट्री कर। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है और जब आपने हवा और पानी को डांटा और लिखा है समुद्र शांत हो गया, तूफान रुक गया और लिखा है बड़ी बड़ी ऐसा जो ऐसा था वो पानी की ऐसा है वो लहरें आ रही थी वो सब रुक गई। अगर लिखा उसने उठकर हवा को डांटा, पानी सुखा, चुप। पानी बोलता है ना, इसने गला करते सुने पानी पानी बोलता है ना, बोलो तुसी तो बोलो, वो पानी भी बोलता, तुसी भी बोलो। पानी बोलता जो पानी आपको पता है, आप जाएं कहीं किसी आशमाई नहर पे जाइए, गड्डी तो उतर के तो जरा किनारे तो खलोयो, पानी घर करेगा ना। यीशु मसीह ने कहा और आगे सुनी, पानी बोलता है तो जो के साथ, और पानी से कहा चुप। कई बार को टर करता को तू तो चुप कर, आने आना तेरी जबान मुंह है ते नाले फिर इतनी लंबी तेरी जबान है। लेकिन आगे क्या लिखा है, लिखा है और पानी से कहा क्या कर, चुप रह और थम जा, चुप रह और थम जा। और वो हवा बंद हो गई और बड़ा अमल हो गया। फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। वो नहायत डर गए, आपस में कहने लगे बस ये कौन है, ये मौसम पहले देखा था हवा पानी का, पहले अंधों को अच्छा है आंखें देते देखा, लंगड़ों को चलते देखा, बैरों को ऐसा सुनते देखा, यीशु मसीह थूक कर अच्छा है अंधों की आंखों को ठीक करता, ये मौजूदा देखा, सब कुछ देखा, वेल एंड गुड है, ऑल वेल एंड गुड है। लेकिन आज तूफान को, और जो बड़ा तूफान जो था, जो बड़ा बरपा हुआ था, जिनको मारने पे असर तुला हुआ था, आपके लाइफ के अंदर, आपके परिवार के अंदर बड़े से बड़े तूफान यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं। अगर आपकी कश्ती में यीशु है, जे ताड़ी कश्ती च यीशु है, तो फिर तूफान की जरूरत नहीं तानू टच नहीं कर। हालेलुया। लिखा वहां और भी, पर पानी भज गई यीशु मसीह की कश्ती च आ रहे, वो सही सलामत। ईमानदारों की लाइफ के अंदर एक ही काम होता है, अबलीस आपको जो है वो टच करना चाहता है। एक और बात बताना चाहता हूँ, अबलीस आपको होशियार करता है पर हम दब जाते हैं। बाइबल के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है, जो यूसुफ जो था उसने क्या किया था, वो बिका, नबी था, प्रॉफिट था, लेकिन बिका, 2 साल बिकता रहा। कितने साल? गुलाम बने। अच्छा उसने क्या कसूर किया? मैं सोचे दे रहा थी, मैं 2 बजे तक मैं क्या भी यूसुफ भी या कोई कसूर नहीं किया सी कि उन्हें कुएं च सड़िया गया, फिर उन्हें बेचा गया, फिर वो 14 साल कैद चलिया। खुदा उनको पुख्ता बनाना चाहता था, खुदा उनको एक बड़ा तख्त देना चाहता था, खुदा उनको बहुत बड़ा एक अमीर करना चाहता था, खुदा उनको बादशाह बनाना चाहता था। लेकिन वो कूड़े से उठाता है और बादशाहों के साथ तख्त पर बैठाता है। खुदा उनकी ट्रेनिंग कर रहा था और करवा रहा था। आपकी ट्रेनिंग है मसीह पे, आपकी परेशानियां आपकी ट्रेनिंग है, आपकी ऐसा है और उस पे आप चेक किए जाते हैं। खुदा इससे आगे बड़ी लेवल की बरकत आपकी लाइफ के अंदर देना चाहता, आपके परिवार के अंदर। जब यूसुफ ने सारा काम मुकम्मल किया, पहली उन्हें ट्रेनिंग सी कुएं से दिया जाना। हालेलुया। वो पास हुआ और जाकर वो लोहा के लोगों ने खरीदा, और जाकर उसकी बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया, उस ट्रेनिंग जो सब तो बहुत पास होया, वो खुदा को बड़ा पसंद आया। उसके बाद वो 14 साल कैद के अंदर रहा और वो उसके अंदर भी पास रहा। लेकिन जब पास 3 महल्ले खुदा ने किए, लेकिन उसके बाद खुदा ने डायरेक्ट उसे बादशाह बनाया। जोरदार ताली। हालेलुया। उन्हें अपनी कश्ती चो खुदा नहीं जान देता। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े तो लिखा है ये क्यों कर हो सकता है, यानी ऐ क्यों नहीं हो सकता, इंज ही होए। लेकिन बाइबल को उसका ये नहीं हो, ये नहीं उसका ये नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अपनी लाइफ के अंदर यीशु मसीह लो, अपनी कश्ती के अंदर कहे यीशु आजा, मैं अपनी कश्ती के अंदर आज तुझे इन्विटेशन देता हूँ,
تو میرے ساتھ کشتی میں رہ، چاہے تو سوتا بھی رہے گا تو طوفان کی ضرورت نہیں، ہاللیلویہ۔ لیکن لکھا وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ اس کو نیند آتی نہیں، یہ مجھے اور آپ کو نیند آتی، لیکن میرا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے، جو پوری دنیا کی سیر کرتے، لکھا ہے اسے میری اور آپ کی صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، وہ ہماری شہر بنا اس کے سامنے ہے۔ آج پرومس کریں، آج کہیں میری کشتی بھی آ جائے، ہاللیلویہ، میرے خاندان کو اس طوفان سے بچا لے۔ جب کشتی، جس کشتی میں یسوع گا وہ کشتی ڈوب نہیں۔ ایسا لگ سکتا ہے خدا اس سے بڑی برکت دینے والا، آمین۔ شاگردہ نے آ کے اب یہ کاموں کو تگڑا ہے، ہاللیلویہ، خدا ہم سب کو بڑی برکت دے گا۔